Hello and welcome to DC Martini. My name is Sandeep, and right now I have with me Advik Mahajan. He's not just been there on television. He has quite a few big films in his kitty, and at the same time he has been the writer, the director of his short film Tamas, which also stars Rashmi Desai. Hello, Advik, and welcome to the podcast. Hi, thank you very much for having me with you guys, and thank you for your compliments that you that you spoke about me, my films, my shows. But right now, I'm here because I want to talk about this film called Tamas, a short film that Tamas. I've made. Yes. Yeah. So, firstly, I know it for a fact that you. Firstly, you've got to tell me. I mean, I know it for a fact that you are here and you want to speak about Tamas and everything. Gee. But the very first question that I'd like to ask you, you're an outsider yourself in the industry, and I read, कि आपको कोई casting message आया था where it was clearly mentioned that we don't really want anyone who is into television or who wants to be who has done television stints. We only want substantial film experience, and that's when you got egged, and that's what really instigated to a certain extent, instigated to make the short film yourself, write it, direct it, produce it yourself. How difficult was it? Honestly, I feel that message was just a part of the process. That message, I mean, ऐसा नहीं है कि वो message पढ़ के एकदम से मैंने plan बना लिया that I want to make this film. No, it was not like that. I had this idea since 1.5 years. A lot of things that are happening around us with my friends, they face it on a daily basis. So there's this issue that I wanted to address. या फिर मैं ऐसा कह लूं कि मैं अपनी तरफ से उसके दोनों पहलू पेश करना चाहता हूं. Right. So when lockdown started, तो at that time I thought कि let me write that subject completely. मैं लिखता हूं क्योंकि because last 1.5 years I was busy with my shooting before lockdown. So अब लॉकडाउन में टाइम मिला है, वक्त मिला है, तो कुछ लिख के उसको कंप्लीट कर लेता हूँ. So I completed the project. As you know, strangely हमारे आसपास हमारे देश में वो चीजें होने लग गई जो मैं सोच रहा था. पिछले 1.5 साल से जो मेरे जहन में जो ख्याल था, that started happening around us in the media and the country and everywhere. So I thought this is the right time, I should write this subject and try to make something out of it. तो मैंने स्टोरी तो लिख ली, पर उसके बाद हुआ ये कि मुझे रियलाइज हुआ that who will direct it, who will be the DOP, who will be the lighting, कौन देखेगा, ये ABCD जो भी crew का काम है, the technical efficient people who are responsible for this, they are not available because of the lockdown. I didn't even have a professional camera with me. तो मैं कैसे करूंगा, लोकेशन भी नहीं है. तो मैंने कहा छोड़ते हैं, लॉकडाउन के बाद आराम से इस फिल्म को अच्छे से बनाऊंगा या जो भी है. तो वो ध्यान से हट गया जहन से. मैंने कहा कुछ बाद में देखेंगे टाइप बात रह गई. कुछ ही दिनों के बाद एक मैंने किसी ऑडिशन के लिए टेप भेजा था उस 1-2 हफ्ते पहले. तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि क्या बना उसका. दे वर कास्टिंग फॉर वेब सीरीज. तो उनका बस एक सिंपल सा मैसेज आया था कि वी आर लुकिंग फॉर, वी नीड योर प्रोफाइल. तो मैंने बोला मैंने टीवी का जो मेरा काम है वो मैंने उनको एज अ प्रोफाइल भेज दिया, मैंने ये काम किया है. तो उनका एक सिंपल सा मैसेज आ गया कि प्रेफरेबली सिनेमा और वेब एक्सपीरियंस विल वर्क. तो विच इज राइट, दे आर, हर एक की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके हिसाब से कास्टिंग होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है. बट मुझे कहीं लगा कि यार कहीं थोड़ा सा फील हुआ कि टीवी भी तो काम करते ही हैं हम, ऐसा तो है नहीं कि एक्टिंग नहीं होती है, या काम तो काम ही है. और मैंने फिल्म्स भी की हैं, मैंने थिएटर भी किया है, मैंने टीवी भी किया है और सालों से करता आ रहा हूँ. और मैंने कभी ऐसा, मुझे समझ में नहीं आया. मुझे अगर आप टुडे आल्सो इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रेफर, व्हिच मीडियम डू यू प्रेफर, आई डोंट हैव अ आंसर टू दैट. बिकॉज़ फॉर मी आई स्टार्टेड इन जालंधर पंजाब. छोटे रोल कर थिएटर में किए हैं. फिर आई हैव डन तेलुगु सिनेमा, आई हैव डन हिंदी सिनेमा, आई हैव डन टीवी, आई हैव डन स्मॉल रोल्स, आई हैव डन बिग रोल्स, दिस दैट व्हाटएवर. सो बट आई हैव नेवर बीन एबल टू make differentiate between a platforms. एक्टिंग है मेरे लिए. तो मैंने उस नजर से देखा है. तो मुझे बस वो लगा कि यार
ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है. सो दैट्स द थॉट. देन आई थॉट कि यार ये जो फिल्म मैंने अब लिखी है ना, ये मैं खुद ही बनाऊंगा और लेट मी क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट. लॉकडाउन को वेस्ट क्यों करना है? अगर मेरा सब्जेक्ट है, आई विल वर्क हार्ड फॉर दिस, आई विल हैंडल द कैमरा. कैमरा नहीं है तो क्या हो गया, आईफोन है मेरे पास, मैं आईफोन से शूट करूंगा. लाइट नहीं है तो क्या हुआ, एक बल्ब था, उसको उसको घुमा के उसकी कटिंग कुटिंग वो चार्ट पेपर से तैयार करके वो लाइट. मतलब तुम बोल रहे हो कि एक्चुअली शॉट ऑन एन आईफोन? या आई शॉट दिस फिल्म ऑन एन आईफोन. ओह ग्रेट मैन, दैट्स रियली गुड. आई मीन बहुत सारे एक्चुअली इंस्पायर देम अ लॉट. ऑनेस्टली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी. मेरे पास दो ही चीजें मेरे जहन में थी कि मुद्दा मुझे बहुत, आई एम वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस मुद्दा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास ये चीजें होती हैं और मुझे पसंद नहीं है ये जो होता है, तो मुझे वो कहानी बाहर लानी है. एंड नाउ आई हैव द टाइम आफ्टर लॉकडाउन. पता नहीं शूटिंग में बिजी हो जाओ, यहाँ हो जाओ, वहां हो जाओ, वक्त मिले ना मिले. और कभी किसी के जहन में शायद आया कि टीवी का एक्सपीरियंस वो मायने नहीं रखता है, तो फिर ठीक है, हम ही अपने चांसेस खुद लेंगे, तो लेने तो पड़ेंगे चांसेस. तो देन आई डिसाइडेड एंड घर का पूरा फर्नीचर, घर का सारा सामान, आई शिफ्टेड इट आउट, आई पुट इट आउट. हेवी सोफास, वो सब कुछ है जो खींच के नेहा ने, शी माय वाइफ, शी हेल्प मी, हमने पूरा घर बाहर निकाल दिया. मेरे पड़ोसी पर हैरान हो गए कि व्हाट आर यू गाइस डूइंग. So I told them I'm sorry, please adjust just for few days because we are trying to shoot a film at home. तो मैंने पूरा सेटअप घर खाली करके, मेरा घर ऐसा, मुझे एक सेटअप चाहिए था, तो वो क्रिएट किया घर पे ही. And then I started shooting and everything, कैमरा भी मैनेज करना, वो सब ABCD जो करना पड़ता है वो किया. और इसको 1-1.5 महीना कैमरा माउंट वगैरह करने के लिए ट्राइपॉड वगैरह था? नहीं था, ट्राइपॉड तो नहीं था यार, पर तो हैंडहेल्ड था सब. मेरे पास एक वो है, स्टूल्स है घर में, तो वो ऊपर रख के मोबाइल फिट करते थे, और पीछे एक डब्बा रख के मोबाइल को वो देते थे सपोर्ट. और कितनी बार जहां हैंड हेल्ड पे हो सकता था वहां नेहा को मैं बोलता था, वो हैंडल करती थी कैमरा. तो ट्राइपॉड मेरे पास, बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि शूट करूंगा. अब जाके ये ट्राइपॉड जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैंने अभी अमेज़न से ऑर्डर किया है. अब मुझे अक्ल आ गई कि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ गई तो एक ट्राइपॉड होना चाहिए यार. तो उसी exactly, पे ये जो मेरा भी फोन जिस पे खड़ा है वो ट्राइपॉड ही है. तो बट इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस यार. मैंने 1.5 महीना लग गया इस पूरे काम शूट में, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ 3 घंटे लाइट आती थी उस एरिया में जहां मुझे करना था. तो मैं दिन में वेट करता था वो 3 घंटे आएंगे, 3 घंटे में जो कर पाऊंगा कर लूंगा. और क्या है, क्योंकि एक्ट भी खुद ही करना है, सब कुछ खुद करना है, तो थोड़ा मुश्किल तो आती है. बट अच्छा, ये एक और सवाल है जो अचानक से मेरे दिमाग में अभी जहन में आया कि एक्टिंग, आई मीन you had your wife to help you with the camera, but how does she have a little bit of knowledge as far as camera placement is concerned, the composition is concerned? थोड़ा भी knowledge था उनको? नहीं, knowledge तो नहीं है, बट मुझे लगता था बहुत सॉर्टेड है. मैं 5 बार उनको वो टेक लेके दिखाता था उनके ऊपर कि आप यहाँ आओ, खड़े हो जाओ, अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है. तो तभी वो बहुत टाइम लगता था, मतलब एक शॉट को 1-2 घंटा लग जाता था. और जब तक शॉट प्लेस होता था, लाइट होती थी, ABCD सेट होता था, अब टाइम होता था एक्टर के लिए सामने आके परफॉर्म करने का, तो मेरे पसीने चोरे होते थे, मैं टिश्यू मार के पसीना पूछ के चल जल्दी. सो आई शॉट लाइक दैट. So it's been a learning experience. There is no hair makeup, कुछ ऐसा नहीं है फिल्म में. मेरे बाल मैंने बनाए नहीं है पूरी फिल्म में, शायद लास्ट में बनाए हो तो बनाए हो. और कंटोरिंग एक स्टिक, मेरी वाइफ शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मैंने उनको बोला था यार वो एक डार्क स्टिक होती है, तो उससे कंटोरिंग कर दो, क्योंकि लाइट बहुत घर में ज्यादा आती थी 3 घंटे, तो उसमें बर्न होता था फेस, तो मेरे को वो डार्क करना पड़ता था कंटोरिंग स्टिक से पूरा फेस, कि थोड़ा कम लाइट कैच करे फेस. ओके. तो yeah, it's been an experience. Then फिर रश्मि भी आई बाद में later on when I needed a girl. अब लड़की कहाँ से ढूंढे, लॉकडाउन है, and I wanted a good actor because लड़की मेरी फिल्म की सोल है, जो मैसेज है वो उनके थ्रू आता है. She is the kind of hero of my film. अच्छा. So then Neha suggested me, why don't you try Rashmi? She fits in the part. So yeah, then I thought कि यार रश्मि दिखने में भी वैसी है जो मुझे चाहिए, एक्टिंग की माशाल्लाह सब लोग जानते हैं, उसपे क्या मैं बोलूं. और everything was fine with her. So I approached her, I messaged her, I sent her the script कि आप पढ़िए, अगर आपको अच्छी लगे तो please I would wish कि आप इसमें काम करें मेरे प्रोजेक्ट में. She was very kind.
उनको सब्जेक्ट अच्छा लगा और उन्होंने फोन करके मेरे को बोला कि मुझे तेरी कहानी बहुत अच्छी लगी है और ये फिल्म मुझे ही करनी है, which was very sweet of her, knowing that I'm an actor and I have not directed, I have not produced, I have not ABCD did anything before, और मैं टेक्निकली कोई मैंने पढ़ाई भी नहीं की है फिल्म मेकिंग की, मैं ऐसी झूठ बोल दूं, जो सीखा है वो बस कैमरे के आगे एक्टिंग करते करते पिछले इतने सालों में सीख लिया और बस एक बनाने की इच्छा थी, रिजल्ट का सोचा नहीं कि अच्छा होगा कि बुरा होगा. I just wanted to make a short simple film and put it out. Now let people decide it's good, bad, whether they want to take that message or not. That's not exactly in my hands. Advik, film का नाम Tamas है, और when you hear the word Tamas, the first thing that comes to me in my mind is वो पहला निलानी का Tamas, जिसमें ओम पुरी था, and there was such stalwart actors, and it was actually talking about partition. And on the other hand, if you talk about the meaning of the word tamas, हम लोग जैसे बोलते हैं तामसी आदमी, या मतलब जो darkness और जो थोड़ा बहुत negative attributes वाला इंसान होता है, उनको we say कि तामसी है. नहीं तो there is the opposite which is called राजसी, जो तामसी और तामस और राजस जिसको बोलते हैं. So तामस और राजस जिसको बोलते हैं. So you've got to tell me कि वो ये how did you firstly figure out the name that this would be the particular name of my short film, और किस तरह से क्या, what was that thought process behind and everything? Because जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ that's called ऋषि, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डार्क है और वो ग्रेट, he is not the hero kind of a guy, और ये थॉट प्रोसेस पे ही एक फिल्म है जो बहुत दुनिया का है थॉट प्रोसेस, जिसको मैं मानता हूं कि वो थोड़ा डार्क थॉट प्रोसेस है और वो सोच का फर्क है. तो उस हिसाब से मैं जब नाम सोच रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं ढूंढ रहा था, सोच रहा था, तब जाके तमस जब मुझे मिला नाम, तब मैंने कहा ये नाम मेरे लिए, मेरी फिल्म के लिए बिल्कुल सही बैठता है. जो थीम है मेरी फिल्म का, डार्कनेस ऑफ द माइंड काइंड ऑफ, तो हमारी सोच का जो अंधकार है या दिमाग का, तो उस पे एक मुद्दा है, तो वो फिल्म पे सूट बैठता था. अब तमस रख लिया नाम, अब सब कुछ जब हो गया तब आई रियलाइज्ड, एंड देन मेरे किसी और फ्रेंड ने जिक्र किया कि यार ये तो हमारे बहुत एक अच्छी और बड़ी फिल्म ओमपुरी साहब, मैंने पहला निलानी बोला, इट वाज एक्चुअली डायरेक्टेड बाय गोविंद निहलानी. तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार ये फिल्म उनके ऐसे उन्होंने बनाई थी, एंड मेरी फिल्म उनके आसपास कहीं भी नहीं है यार, ना मेरी फिल्म की वो औकात है कि उस फिल्म के आसपास कहीं पहुंचे, बट कुदरती मैंने रख दिया तमस. बाद में पता चला कि उनकी भी फिल्म का नाम तमस था, which is just a coincidence. I don't think so कि प्लॉट का भी कुछ सिमिलरिटी कुछ ऐसा है नहीं, but I just liked the name and it suited my story, so I just kept it. ज्यादा सोचा नहीं मैंने, बस जो सही लगा वो रख दिया. अच्छा, so you know, अभी let's just divert a little bit from Tamas and let's get to where we are at the present moment, and for the fact that you know the air is really filled with remorse. There's a lot of regret in the air, and people are, I mean, especially after Sushant Singh Rajput's death, everybody is pinpointing everybody and एक ना एक तरह से blame करने की कोशिश कर रहे हैं. You being an outsider, did you ever face anything of that sort? I mean, a nepotism kind of an atmosphere in the industry. ऐसा कुछ महसूस किया? मैंने एक्चुअली क्या है, इसमें दो चीजें हैं. आप जब पूछते हैं कि आपने फेस किया है ये चीज, मैंने फेस किया है मेरे चांसेस को जाते हुए, बड़े बड़े चांसेस मेरे हाथ से निकलते हुए. मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है. 10-12 साल हो गए हैं. आई स्टार्टेड एज अ हिंदी फिल्म हीरो विद राम गोपाल वर्मा, प्रोड्यूस्ड बाय द बिगेस्ट बैनर पीवीआर सिनेमास. तो वहां से मैंने शुरुआत की और मैंने सब कुछ देख लिया है. मतलब आप ये मान लीजिए मैंने वो देख लिया जब मैं जेब में एक पैसा नहीं था और मैं अपने दोस्त रिश्तेदार सब लोगों से पैसे मांग रहा था सरवाइव करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, बिकॉज मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था. और मैंने वो टाइम भी देख लिया जब जेब में पैसे थे पर पता नहीं था खर्च कहाँ करना है. पर ये उतार चढ़ाव ही चलता रहा है, शुरू से चलता रहा है. आई फेस दिस इन लॉट ऑफ प्लेसेस, बट द ओनली डिफरेंस, I have not used the word nepotism here.
मैंने सब बात आप ही की बोली है, पर मैंने नेपोटिज्म का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है? Exactly. क्योंकि आज मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मैं जब छोटे होते मैं पंजाब से आया तो मुझे मालूम था, हमारे वहां तो मैंने बहुत सुना था और देखा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता था, इंजीनियर का बेटा मेरे बेटा को इंजीनियर बनाना है, और मेरे इतने दोस्त यार हैं सब अपने बाप के बिजनेस में बैठे हैं। तो अगर वो सब हो सकता है, तो अगर बॉलीवुड वाले यहाँ पे कोई अगर हैं जो चाहें कि उनके बच्चे को चांस मिले, अगर वो अच्छा कर रहा है, तो व्हाई नॉट। हाँ, हुनर होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, अननेसेसरी ड्रैग कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान सर, आयुष्मान, राजकुमार, पंकज त्रिपाठी, बमन ईरानी, टेक द नेम्स, कितने एग्जाम्पल है यार। तो मतलब ये नजरिए की बात है। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया नेपोटिज्म। होगा तो होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेहनत करना, पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने फोकस, अपनी उसकी तरफ, नजरिए की तरफ देखूं। नेगेटिविटी पे मैंने आज तक फोकस ही नहीं किया, ना मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया। एंड मे बी दैट इज द रीजन कि मैं इतने सालों के बाद भी इतनी बीच में उतार चढ़ाव, टीवी में भी, मतलब इमेजिन मैंने टीवी में लीड करने के बाद इमीडिएटली बाद मेरे पास काम नहीं था, तो मैंने छोटे छोटे एपिसोडिक्स किए, छोटे छोटे 10-10 दिन के कैरेक्टर किए, मैंने सब किया है। बट क्या है कि अब कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया ये करके, या मैं इसके बारे में इफ आई यू नो फ्लॉन्ट, ओह आई डिड दिस दैट, मैंने इतना स्ट्रगल किया, नो बिग डील, आई डिड इट फॉर माई सेल्फ एंड दिस इज अ पार्ट दैट वी ऑल हैव टू गो थ्रू। आप अपने प्रोफेशन में आई एम श्योर आपने बहुत मेहनत की होगी और स्ट्रगल देखी होगी, और आप किसी की तरफ भी देख लें, हम everyone has a fair bit of struggle and grind that they have to go through to become a better person, to become a better artist. And I believe अगर मैंने शुरुआत से वो फिल्में मेरे हाथ से गई, मेरा काम मेरे हाथ से गया, मुझे कई प्रोजेक्ट से निकाला गया, ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ, अगर वो नहीं होता तो मैं शायद आज एक बेटर इंसान और एक बेटर एक्टर ना बनता। What is important is कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से, लॉसेस से सीखिए। और मेरा ये मानना भी है कि इंसान ने कभी कंफर्ट में ग्रो नहीं किया। Whenever you get a problem, then only you rise to the occasion. Otherwise, जो कंफर्ट होता है तो you don't try to make something out of it. Like अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद ये फिल्म ना बनती। Simple. मैं you know, that's my approach towards it. You've got to tell me your association with Rashmi, और किस तरह से क्या हुआ, and how did she suddenly, I mean, how did you firstly think of her? हालांकि इस बारे में आप बात कर चुके थे इसके पहले भी, but still I want to understand कि मतलब what was the conversation like? I mean, did you just send the script to her, she liked the script, and as you just said, she was very happy reading the script and she said yes, कि थोड़ा बहुत उनको समझाना पड़ा the character's mindset, or she was completely, I mean, she knew what has got to be done in front of the camera on the script. No, as I said, I approached her, I called her, and I informed her that this is a film I'm making. I'm trying to make a film for a social cause. इसमें से अगर कोई इनकम आई, मुझे पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, बिकॉज ऑनलाइन रिलीज कर रहे हैं, मेरे इतने वो कॉन्टैक्ट्स थे नहीं कि मैं बेच पाऊँ फिल्म को, ये कर पाऊँ वो कर पाऊँ। तो व्हाटएवर जो भी थोड़ा बहुत आएगा, I am going to give it away. I don't want to, मेरे को अपना खर्चा भी नहीं निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। I have certain associations that I'm in touch with, जिनको मैं रेगुलर करता हूँ, तो वो वहीं जाएगा, उसी कॉज के लिए पैसा जाएगा। तो ऐसा क्लियर मैंने उनको सब साफ बोल दिया, ये फिल्म है, ये मुद्दा है, और मैं चाहूंगा आप ये तभी हाँ बोलिए जब आपको स्टोरी अच्छी लगे। तो मैं आपको स्टोरी भेज रहा हूँ, इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट द स्टोरी लाइन, देन ओनली प्लीज से यस, एंड डोंट बी you know, ऐसा मत सोचना कि नेहा के थ्रू कुछ ये वो। And I'm sure Rashmi is a thorough professional, तो वो अपना काम देखकर ही बोलेंगी हाँ, वो प्यार मोहब्बत और दोस्ती यारी के लिए काम नहीं करेंगी किसी भी चीज के लिए। तो I was lucky, she called back, she liked the script, तो उन्होंने बोला कि I want to do it, and that's how we started, and it's been great यार। अगर वो ना होती तो ये सब्जेक्ट वैसा ना बन पाता जो मैंने सोचा था। And God has been kind, I guess. In fact, not only Rashmi, सूरज थापर जी सीनियर एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, वैष्णवी जी मेरी मॉम का कैरेक्टर प्ले किया है, सूरज जी ने मेरे फादर का प्ले किया है। तो ये शूट मतलब you did it inside your house, इतने जन अगर है, I mean everybody has shot inside the house, so how did you guys meet and how did? No, no one has met.
everyone shot at their place और जो था वो सब बाद में edit पे मैंने संभाला है and रिधिमा तिवारी मैचिंग में तो बहुत बड़ा दिक्कत हुआ रहेगा जिसने भी एडिट किया रहेगा because you know अगर I mean it is difficult you're saying something you've got to look in a particular direction and then how did that communication happen how I said it you got to say it this way. So that's the crux of the story. That's I mean that's a part of the story. I can't reveal how how all these things came in place, everything, and how we bonded and editing पे कैसे संभाला या क्या किया. But सबका जो भी रोल है, रिधिमा तिवारी, she did amazing. और उसके अलावा आदिल मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने कास्ट किया था because he is a very good actor and he again fitted the part. तो जो लोग अब प्रॉब्लम क्या थी, मुझे बार-बार फोन पे बात भी करनी थी, समझाना भी था, ये भी था, वो भी था. So I needed people who I am comfortable with, who would want to give their self to the project. And these people they supported. रिधिमा हो, वैष्णवी जी हो, सूरज जी हो, आदिल हो, रश्मि हो, everyone supported me and I'm really thankful for them, thankful to them. In fact हमारे साउंड म्यूजिक जो भी है, एडिटर, सब लोगों ने यार अपना बेस्ट करने की कोशिश की है इस प्रोजेक्ट. How what was the length of the film? It is 23 minutes. 23 minutes. The film is 23 minutes 6 seconds. Exactly. And it has got a proper beginning and a proper body. Yeah. Proper conclusion. मुझे लगता है बाकी अब आपको क्या लगता है या ऑडियंस को क्या लगता है वो पता नहीं, बट एक चीज की खुशी है. No, since you are the filmmaker, if you think that हाँ अगर है तो फिर है, obviously. That's what I'm saying. From my point of view, what I imagined while writing, I have exactly put it on camera and right now with Hamara Movies. Hamara Movies have again supported me. उनको अच्छा लगा subject and they That's really kind that they are releasing it now today evening. That's actually very commendable. You know, you're kind of reminding me of my film institute days. इस तरह से मैं. अच्छा. That is why I'm asking you all the nitty-gritties of मतलब shooting. हमने भी जलाए हुए हैं. Exactly. Okay, so my final question to you, Advik, is I saw the poster of the film and I kind of liked it. It had a very earthy feel and at the same time it had a very period kind of a feel to it. I don't know, maybe because of Rashmi's makeup and the way she's जिस तरह से वो दुपट्टे को अपने सिर के ऊपर देके खड़ी हुई है. I wanted a very तो real सा एक look चाहता था मैं. I'm sorry, to give जो कैरेक्टर्स हैं दोनों, रश्मि का या मेरा, वो बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास है. तो बहुत ही सिंपल है. आप तुम देखोगे ना आपको लगेगा यार ये तो मतलब बिल्कुल भी ग्लॉस नहीं है, बिल्कुल भी कुछ ऐसा है नहीं. जो कहानी है उसके मतलब रियल लाइफ से मिलता जुलता something that you can relate to is what you're trying to drive at. Yeah, and Rashmi also, she did perfectly well with the look, we wanted. So उसी हिसाब से पोस्टर भी defines their different ideologies, उनका thought process, black and white जो रखा है पोस्टर का शेड. The poster is beautiful, especially because the fact that you have this वो मतलब she's in color and you're in a monochrome, you're in black and white. And the perspectives are also different. I kind of love the poster. So the poster was one intriguing point why I thought of doing this interview in the first place. And I'm being very open and very frank. और ऊपर से नाम भी इतना अच्छा था. Again, that name was a very big driving factor. Seriously. बस उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म भी अच्छी लगे. I really hope so too. I have my fingers crossed, and I really wish you all the very best for that. But I did not come to the end of my interview, so वो हो जाने दो. All right. So what I want to ask you is, अभी फिलहाल you have Akshay Kumar's film as well. You're doing that film as well. Besides that, and after that, what are your plans, and how do you actually plan to cull things out? एक बार वो हो गया. Has the shooting been completed already? Yeah. The shooting is over. Which one? I'm talking about the Akshay Kumar film. That's coming next month, no? August में वो शायद mostly. I don't know what date it is, but the theaters are not opening in August. No. That's coming on Disney Hotstar. They have announced it. Disney Hotstar.
Disney Hotstar. Oh, yeah, I forgot the name of the film. Lakshmi Bomb. नहीं, कौन सा film था? What was the name of the film? हाँ जी. What film का नाम क्या था? मैं भूल गया. It's Lakshmi Bomb. Lakshmi Bomb. Lakshmi Bomb, exactly. Yeah. Actually, he's coming up with so many movies, and मैं खुद ही confused हो गया. All right, okay. So वो after that, after Lakshmi Bomb, after अब तुम्हारा ये short film. जी. Are you what are your plans again? Television, or you want to do something else? You want to diversify your field of work? How do you plan to move ahead post the lockdown? हाँ, I know. So मैंने जैसे आपको पहले बताया that throughout my career I've done theater, I've done Hindi films, I've done Telugu films also, South में, I've done TV shows. तो मुझे तो काम से मतलब है. जहाँ कोई अच्छा काम दे देगा, I'll do it. And irrespective of the platform, that doesn't matter. So I'm just looking for good work. Let's see, जो भी काम मार्केट में मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं खुद से बनाऊंगा कुछ. फ्री तो नहीं बैठूंगा. शॉर्ट फिल्म बना लूंगा जैसे ये बनाई है. तो कुछ ना कुछ करता रहूंगा. To keep working, दिमाग चलता है. Absolutely. But don't you think अगर तुम खुद से ही करोगे, I mean there is no financial involved and you're doing it all by yourself, then it's a little tough and a little difficult on your pockets. मतलब सब तुम खुद ही से खर्चा कर रहे हो, सब मतलब सबको अपने हाथों से ही खाना खिला रहे हो, पैसे दे रहे हो, and technicians भी है. अगर only you are there and it's a one man army, it's a different thing. But then when you're talking about filmmaking, it involves so many people. It involves your co-actors. It involves so many technicians, cinematographers, photographers, and sound designers, editors. सारे लोगों का एक मेल जोल करके फिर एक फिल्म बनती है. Don't you think it's like a little hard in your pockets if you continue to do that? It can be hard, no doubt. But what I'm trying to do over here is, मैं कह रहा हूँ मैं काम तो खैर उम्मीद करूँगा कि मिले. काम नहीं भी मिलता तो फ्री बैठने की बजाय मैं कुछ ना कुछ खुद बनाऊंगा. जैसे ये फिल्म मैंने बनाई है, I've made it in minimum expenses, minimum crew. तो मेरा ये मानना है कि अगर हम करना चाहते हैं कुछ भी तो हो सकता है. ऐसा नहीं है, कम से कम खर्चे में अच्छी से अच्छी चीज बना सकते हैं. अल्टीमेटली मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं कहानी बताऊं, ना कि ये बताऊं कि मैंने कितना खर्चा किया लोकेशन पे, कितना खर्चा किया मेकअप पे, कितना खर्चा किया इसके कॉस्ट्यूम पे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. तो मैं वैसी बना लूंगा जो मेरे बजट में होंगी, जो मेरी हैसियत के हिसाब से मैं बना पाऊंगा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं लाइफ लॉन्ग बनाता ही रहूंगा, बट अगर काम नहीं होगा तो वो भी करूंगा. और कभी ना कभी तो आई गेट गुड वर्क, सो दैट्स ओके. चलता रहेगा ये तो. Life struggle goes on. वो कभी खत्म नहीं होती. Absolutely. I completely second that. Thank you so much, Advik. It was lovely talking to you. Barely I have such frank conversations with anybody, and I'm really happy I actually took the decision of doing an interview with you for Tamas. I really have my fingers crossed. The film really does well. People really love it and love your work, and the fact that you have worn multiple hats for the film, even that fact comes across. I really have only good wishes for you. Thank you very much. Thank you very much. Or this motivation will go a long way, and I'm looking for that kind of motivation only from everyone. बाकी जो गलतियां होंगी वो अगली बार सुधार लेंगे. All right, so ladies and gentlemen, so that was the wonderful Advik Mahajan. My name is Sandeep with Desi Martini. Thank you so much.